अब खुदा के खादम पास्टर खालिद और पास्टर कीथ कैली वो तालीम देना जारी रखेंगे। It's all yours, brother. Thank you. Thank you. It's great to be here. खुशी हो रही है दोबारा आपको देख के, And we're thanking God for this wonderful opportunity to look into the Word of God. और खुदा का शुक्र करता हूँ इस मौका के लिए कि हम खुदा के कलाम पर आज गौर कर रहे हैं। I want to introduce our survey to the Bible today. आज मैं बाइबल मुकद्दस के जायजे का तारुफ पेश करता हूँ। Just to look at the first 5 books in the Bible, the books of Moses. और बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें जो मूसा की शरीयत की किताबें हैं उस पर गौर करते हैं। But first of all, I want to give you a very simple overview of the whole Bible. लेकिन उससे भी पेशतर मैं सारी जो बाइबल मुकद्दस है उसका एक जायजा पेश करता हूँ। Now, for this, you will need, if you have a pen and paper, it will help you. अगर आपके पास कलम और कागज है तो लिखिए, ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। Now, can we enlarge my picture so you'll be able to see my board? क्या मुमकिन है कि मेरी तस्वीर को बड़ा कर दिया जाए ताकि मेरे पास मंजर में जो बोर्ड है उसको देखा जा सके? Okay. How can we enlarge your picture? It's only you can do, Keith. Oh, can I? How do I do it? Okay, let's Oh, that's better. do something. Yeah. You are sharing your screen, is it right? Oh, am I? Yeah. I haven't started yet to do that. Okay. We see your picture very well. Okay. You are looking great. Good. Audio is clear, video is clear. Yeah, good. That's great. I just want to write something on my board here behind me. Okay, you may. It's So- visible, it's very clear. Okay, that's good. And मेरे पास मंजर में जो बोर्ड है मैं उसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। And I want, if you have a pen and paper, I want you to copy the picture. और अगर आपके पास कलम और कागज है तो इस तस्वीर को अपने कागज पे नकल कर लें। And this is an overview of the whole Bible. और ये असल में सारी बाइबल मुकद्दस का जायजा है। And we start by drawing some circles. और ये भी मुमकिन है कि हम चंद दायरे बोर्ड के ऊपर खींचे। One circle like that. पहला दायरा इस तरह का। Now, we live in a broken world. हम एक शिकस्ता दुनिया में रहते हैं। So this is the broken world here. ये है हमारी शिकस्ता दुनिया। And when we
when we look at the wars, the hunger, the trouble, we see a broken world. और जब हम भूख और मसाइब दुनिया में देखते हैं तो नजर आता है कि हम शिकस्ता दुनिया के वासी हैं। And people feel an emptiness inside. और लोग अपने अंदर एक बड़ा खला महसूस करते हैं And they try to fill that emptiness in different ways. और मुख्तलिफ तरीकों से इस खला को पूर्ण करने की काविश करते हैं। They might try drink or drugs or something else. कुछ लोग शराबे पीते, कुछ लोग नशा की चीजें इस्तेमाल करते और इन चीजों से वो इस Sometimes- अंदर के खला को पूरा करने की कोशिश करते हैं। Sometimes people try religion or entertainment. और कुछ लोग मजहब का इस्तेमाल करते और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ किस्म की एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। But this is not the world that God wanted for us. लेकिन ये वो दुनिया नहीं जिसका खुदा ने हमारे लिए ख्वाब देखा था। The world God wanted was beautiful. जो दुनिया खुदा ने इंसान के लिए तख्लीक की वो तो खुशनुमा दुनिया थी। And God made the world because he loved us. और खुदा ने ये दुनिया बनाई चूंकि वो इंसान को प्यार करता है And he wanted to bless us. और वो हमें बरकत देना चाहता था। But men and women they turned from God. लेकिन मर्द व जन खुदावन से उन्होंने रूपोशी की And the Bible calls that word sin. और खुदा उस लफ्ज को गुनाह कहता है। And sin is going our own way. और गुनाह के मानी अपनी राह चलना है। I want to do what I want to do. जो मैं चाहूं मैं वही करूंगा। And God made Adam and Eve and they lived in friendship with God. खुदा ने आदम और हवा को बनाया और वो खुदावन के साथ एक ताल्लुक और दोस्ती में जिंदगी गुजारते थे। But they were tempted by Satan and they turned from God. शैतान ने उन्हें आजमाया और वो खुदावन से रूपोश हो गए And they had to leave God's presence. और खुदा की हजूरी से बाहर निकल गए। But God still loved them. लेकिन खुदा तो फिर भी उनसे प्यार करता था। And then we have the third circle. तो फिर तीसरा सर्कल हम देखते हैं। And God sent his beloved son to earth. तो फिर खुदा ने हल ये निकाला अपने मुकद्दस कलमे कलाम और बेटे को दुनिया में भेजा। And the Lord Jesus lived a perfect life. और सिर्फ यीशु ही दुनिया में है जिसने कामिल जिंदगी गुजारी। But people rejected him. लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उसे रद्द किया। In fact, they crucified him. और यहाँ तक कि उसको सलीब पर मसलूब किया। But he did not die for his own sin. वो सलीब पर अपने गुनाहों की वजह से नहीं मुआ, Died for my sin. वो मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ। He died for your sin. आपके गुनाहों की And then खातिर। on the third day, he rose again. और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। You see, God says, when you sin, you have to die. You have to be punished. खुदा ने फरमाया है और खुदा ने कहा था जो गुनाह करता है गुनाह की मजदूरी मौत है। So Jesus said, I will take
the punishment for them. और यीशु मसीह ने कहा कि गुनाह की सजा को मैं अपने ऊपर लेता हूं, इंसान के गुनाह की सजा को। And when he rose from the dead, he went back to his heavenly Father. और मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने आसमानी बाप के पास वापस आसमान पर चला गया। And he is the King of Kings. और अब वो बादशाहों का बादशाह है। And he sent the Holy Spirit back to us. और उसने आसमान से अपने पाक रूह को नाज़िल किया। So everyone who believes in him and puts their trust in him can be saved. और हर शख्स जो उस पर ईमान लाता है निजात पाता है। And this is the story of the Bible. ये है बाइबल मुकद्दस की कहानी। It's how we can come back to God. और वाकया ये है कि कैसे हम वापस अपने खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। God has given us a door out of this broken world. और खुदा ने इस शिकस्ता दुनिया में एक दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है ताकि हम उसके पास वापस आ सकें। When we turn to Christ, जब हम मसीह की जानिब मुड़ते हैं, उसके पास आते हैं, तो ये दरवाजा उसने हमारे लिए खोला है। when we call upon him and pray to him, और जब हम उसके नाम को पुकारते हैं और उसके नाम में दुआ करते हैं, the Bible says, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. ये बाइबल मुकद्दस कहती है जो भी मसीह का नाम लेगा निजात पाएगा। And our sins are forgiven. और फिर मसीह में हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं And we have fellowship with God. और खुदा के साथ हमारी रिफाकत हो जाती है। Thank you, Jesus. So this is what God can do for you. और ये सिर्फ खुदा ही है जो इंसान के लिए कर सकता है। Now, you can put your own words in, but I would write it like this. When we turn back to God, आप अपने अल्फाज इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं ये लिखता हूं या मैं ये इस तरह बयान करता हूं कि जब हम खुदा की जानिब आते हैं and when we trust him, और जब उस पर भरोसा करते और उसकी तरफ रुजू लाते हैं, we turn from our sin and we trust what Jesus did for us on the cross. अपने गुनाहों से तौबा करते और मसीह पर ईमान लाते हैं, And God gives us his Holy Spirit. तो फिर खुदा अपना पाक रूह हमें बख्शता है And we become friends with God again. और दोबारा खुदा के दोस्त बन जाते हैं। Now, I want you to learn this little diagram. और मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने नक्शा बनाया है इसको आप सीखें। This is very simple. ये बहुत सादा जायजा है And when I've shared it with people, they begin to understand what the Bible is all about. और जब मैं ये सरसरी बाइबल मुकद्दस का जायजा लोगों को पेश करता हूं, उनको समझ आती है कि असल में सारी बाइबल And I want to give you a little challenge that you try to remember this little plan, and this week share it with somebody. और मैं ये चैलेंज आपको देना चाहता हूं कि इस हफ्ते ये जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं किसी दूसरे के साथ शेयर कीजिए। And we're going to, I just want to screen share now if I can. और अगर हो सके तो मैं अब स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। Now I don't know how to get back into the screen share. I know you are very expert.
You have been doing a lot. How do we get the screen share? It's gone. You will see a bar there down. Oh, I below. see. Yeah, I've Yes. got it. You see, Yeah. Yeah. I'm guiding you even all the way from Finland. Very good. You're very clever. Thank you. I've got it. That's great. I'm nearly there. Okay, it'll come. Here we go. Now, this is the Bible story. ये है बाइबल मुकद्दस की कहानी. And it's just loading up. ये लोड हो रही है. And here's my picture. This is better than my drawing. ये है मेरी ड्राइंग और ये है वो पिक्चर जो मैंने आपको बताई है. But I want you to try and learn this very simple picture. और मैं चाहूंगा कि ये बहुत सादा तस्वीर है, लेकिन आप इसको सीखें. And this is what all the prophets said. Turn back to God. और तमाम जो अंबिया थे उन्होंने यही तालीम दी कि खुदा की तरफ रजू लाओ. It's what Moses said. Turn back to God. यही मूसा ने कहा खुदा की तरफ रजू लाओ. And if we turn back to God, He can forgive us and save us. और जब हम खुदा की तरफ रजू लाते हैं तो फिर वो हमें निजात देता है और हमें बचाता है. Now, I want us just to look at the Old Testament very briefly. और मैं बहुत इख्तिसार के साथ जो पुराने ऐहदनामा है वो आपके सामने पेश करता हूँ. There's an easy way to remember the books of the Old Testament. We just have to remember these numbers. पुराने ऐहदनामा को बहुत सादा तरीके से हम याद रख सकते हैं. It's 5, 12, 5, 5, 12. हम इस तरह से याद रख सकते हैं 5, 12, 5, 5 और 12. And you'll understand it when I show you this picture. और जब मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको इसके ज्यादा माने समझ आ जाएंगे. You see, there are 5 books in the books of Moses. मूसा की शरीयत की 5 किताबें. Then there are 12 books of history. That's from Joshua to Esther. और फिर तारीख की 12 किताबें. And there are यशूआ से शुरू 5. करके अस्तर की किताब तक. There are 5 books we call the wisdom or poetry books, Job to the Song of Songs. और फिर 5 हिकमत की किताबें अयूब की किताब से शुरू करके गजलो गजलात तक. And then there are 5 books of the major prophets, Isaiah to Daniel. और फिर जो बड़े अंबिया दानियल से लेके यसाया से लेके दानियल तक. Then there are 12 books of the major prophets, Hosea to Malachi. और फिर होसिया से लेकर मलाकी तक 12 छोटे अंबिया. The minor prophets are called minor because they are shorter. The books are shorter. जो माइनर प्रॉफिट हैं या जो छोटे अंबिया हैं सिर्फ इसलिए उनको छोटे कहा जाते हैं क्योंकि उनकी किताबें छोटी हैं. The major prophets are longer. जो अंबिया अकबर हैं उसकी वजह यह है क्योंकि उनकी किताबें जरा बड़ी किताबें हैं. And in the same way with the New Testament, it's 5, 13, 9. और फिर जो नया ऐहदनामा है उसको हम इस तरह से तकसीम कर सकते हैं 5, 13 और 9. There are like 5 books of the history of the early church, Matthew
Mark, Luke, John, and then Acts of the Apostles. इब्तदाई कलीसिया की 5 तारीखी किताबें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना और फिर अमाल की किताब। Then there are 13 books written by Paul, Roman, the Philemon. और फिर 13 खतूत जो पौलुस रसूल ने लिखे रोमियो से लेकर फिलेमोन। And then there are 9 other letters by individuals, Hebrews, James, Peter, and John. और फिर 9 मुख्तलिफ खतूत जो मुख्तलिफ अशखास ने लिखे। If you can remember those numbers, you'll really be able to understand a bit more of the Bible. और अगर आप इन नंबर्स को याद कर लें तो आप पुराने ऐदनामा को और नए ऐदनामा को बहुत अच्छी और आसानी की तरह याद रख सकते हैं। Here's a very important verse in the Bible, 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत बहुत खसूसी आयत है कलाम मुकद्दस में। All scripture is given by God. All scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. It is useful for correcting faults and teaching the right way to live. ये सहीफे खुदा के दिए हुए हैं, ये करामत हैं और इन तालीमात से तुम लोगों को बता सकते हो कि उनकी जिंदगी में क्या बुराइयां हैं। ये उनकी गलतियों को दुरुस्त करने में मुफीद साबित हो सकते हैं और उनकी जिंदगी सही जिंदगी का तयन कर सकते हैं। So the Bible begins with the creation of the world. बाइबल मुकद्दस का शुरुआत दुनिया की तख्लीक से होता है। God makes everything. खुदा ने हर चीज को तख्लीक किया। God is all powerful. खुदावंद बहुत कुदरत वाला है। God is everywhere. और खुदावंद हमाजा है। God knows everything. खुदावंद ना सिर्फ हमाजा है बल्कि वो अल बसीर भी है। The first thing we learn about God in the Bible is his power that he can create the universe. और सबसे पहली चीज जो कलाम मुकद्दस में हमें पैदाइश में दिखाई देती है वो खुदा की कुदरत ही है और कुदरत ये कि हर चीज को वो बनाने तख्लीक करने की कुदरत रखता है। That should fill you with joy that the great creator is our Father. आपका दिल खुशी से भरना चाहिए कि हमारा आसमानी बाप तख्लीक करने वाला है। Genesis chapter 1 verse 1 and 2, it says, in the beginning God made the heavens and the earth. The earth was without shape and it was empty. Deep water covered the earth and everywhere was dark. The Spirit of God moved above the water. That's it. और पैदाइश की किताब की पहली और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। God made everything. खुदा ने हर चीज को तख्लीक किया। And the first 5 books of Moses, they show that God is the great creator. और जो पहली 5 मूसा की किताबें हैं वो हमें ये बताती हैं और सिखाती हैं कि खुदा तख्लीक करने की कुदरत रखता है। And throughout the Bible, we see God's plan to destroy sin and Satan. और बाइबल मुकद्दस सारी में हम ये सीखते हैं कि खुदा का मंसूबा ये है कि कैसे शैतान और गुनाह को तबाह करना है। Even in Genesis, the first prophecy in Genesis chapter 3 verse 15 tells us that Christ will come.
पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में जो पहली नबूवत है वो मसीह की आमद के ताल्लुक से है। And he's going to destroy sin. और नबूवत ये थी कि वो गुनाह को तबाह बाला करेगा। And God showed all these things to Moses so he could prepare the people to enter into the promised land when they came out of Egypt. और मूसा के वसीला से खुदा ने ये सारी बातें लोगों को सिखाई और बताई ताकि वो मुल्क मौदा में दाखिल हो सकते। So it's very wonderful. God, the creator, और ये बहुत दिलचस्प और खुशनुमा हमारे लिए बात है कि जिस खुदा की हम पूजा करते हैं वो तहलीक करने वाला खुदावंद है, तहलीक नौ करता है। the Bible is like one story. It begins in the Garden of Eden and it ends in the garden in the New Jerusalem. जो सारी बाइबल है उसमें हमें एक बहुत खूबसूरत तवाज़न नजर आता है। पैदाइश की किताब शुरुआत बाग से होता है और मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम भी बाग से नए यरूशलेम से होता है। The Lord God planted a garden in the east in a place named Eden. He put the man he made in that garden. That's Genesis chapter 2 verse 8. और पैदाइश की किताब और उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत हम पढ़ते हैं कि खुदा ने Then when you come, मशरक में अदन के बाग को बनाया ताकि इंसान उसमें रहे। when we come to the end of the Bible, Revelation 22, we find there is a garden. और जब मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में हम पहुंचते हैं तो हमें नजर आता है एक बाग। The angel showed me the river of the water of life, clear as crystal. The river flows from the throne of God and the Lamb. It flows down the middle of the street of the city. The tree of life is on each side of the river. It produces fruit every month, 12 times a year. The leaves of the tree are for the healing of the nations. आमीन। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था और उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती थी। So isn't it wonderful? We see the Bible is one story. We see how sin started and we see how sin ended. God's plan cannot fail. क्या खूबसूरती है कि बाइबल मुकद्दस की जो कहानी है वो एक ही है। उसका शुरुआत बाग से होता है और फिर गुनाह नजर आता है कि गुनाह का शुरुआत हुआ। मुकाशफा बाइबल मुकद्दस की कहानी का इख्तिताम हमें बताता है कि बाग ही में इसका इख्तिताम होता है और गुनाह का ताहोबाला हमें नजर आता है कि बिलाखिर गुनाह तमाम होता है। There are 4 major events in the beginning of Genesis. पैदाइश की किताब में 4 बड़े वाकयात हमें नजर आते हैं। There's creation and then sin, then the flood of Noah and the Tower of Babel. और ये जो वाकयात अकबर हैं वो तख्लीक, गुनाह, तूफान और फिर बाबल, ये 4 हमें नजर आते हैं वाकयात अकबर। God made this beautiful garden because he wanted to have friendship and fellowship with people, men and women. खुदा ने खूबसूरत बाग तख्लीक किया ताकि मर्द और ज़न आदम और हवा उसमें उसके साथ रिफाकत रखें। And he made man and woman
to be like himself. और फिर खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया So he could fellowship with them and talk to them. ताकि वो उनके साथ रिफाकत कर सके और उनके साथ गुफ्तार कर सके. But sin came in, and the devil tempted Eve, and she led Adam into sin. But it says in Genesis 3, verse 15, I'll make you and the woman enemies to each other. God says this to Satan, your children and her children will be enemies. You will bite her child's foot, but he will crush your head. और फिर गुनाह दुनिया में आ गया, लेकिन खुदा ने ये पेश गोई और पेशबंदी की, और पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा ने फरमाया कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा. And that happened on the cross. There's a serpent seeking to bite the foot of the Messiah. और हमें सलीब के ऊपर ये नजर आता है कि उसने, इब्लीस ने मसीह की एड़ी को काटा. And that's what happened on the cross. Satan thought he could destroy Jesus. Nails were in his hands and in his feet. But really, Jesus destroyed the devil's power on the cross. और सलीब के ऊपर शैतान ने यीशु मसीह को कीलों से जड़ा. It says in the New सलीब के Testament, ऊपर भी मसीह ने फतह पाई और शैतान के सर को कुचला. it says in the New Testament that Jesus destroyed him that had the power of death, that is the devil. That's in the book of Hebrews. और इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने उसको शिकस्त दी जो कुदरत रखता था. What a great savior. इस मौत के ऊपर कुदरत रखता था, उसको मसीह ने शिकस्त दी. In Genesis, we see the great flood, that God destroyed sinful people. और पैदाइशी की किताब में एक बड़ा तूफान हमें नजर आता है, का वाक्य नजर आता है. खुदा ने सारे लोग जो गुनाह आलूदा थे, खुदा ने उनको तबाह कर दिया, मार दिया. But all who were in the ark were saved. लेकिन वो तमाम जो नूह की कश्ती में थे, वो बच गए. And that is a picture of the Lord Jesus Christ. और ये असल में शबीह और तस्वीर है यीशु मसीह की. On the day of judgment, everyone who is in Christ will be saved. क्योंकि अदालत के दिन वो सब जो मसीह में हैं, वो सब बच जाएंगे. But outside of Christ, there is judgment. लेकिन वो तमाम जो मसीह से बाहर हैं, उन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा. When they came out of the ark, God said, just multiply, be fruitful, fill the earth. और जब वो कश्ती से बाहर निकले तो मसीह ने कहा, तो खुदा ने फरमाया कि बढ़ो, फलो और जमीन को मामूरो महकुम करो. But people were sinful, and instead of spreading out to fill the earth, they built a great big tower, said, let's make a name for ourselves. लेकिन चूंकि इंसान की फितरत गुनाह के जहर से जहर आलूदा हो चुकी थी, और एकदम फिर उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की और बाबल का बुर्ज बनाया. So God confused their languages, and then they had to spread out all over the earth. और इसीलिए खुदा ने उनकी जबानों में इख्तलाफ डाला और वो चारों तरफ फैल गए. So there are also 4 major people in the book of Genesis: Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph.
और पैदाइश की किताब में 4 जैसे वाक़यात अकबर नज़र आते हैं, उसी तरह से 4 जो हमें अकबर लोग नज़र आते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। And God shared the good news with Abraham in Genesis 12, verse 3. He said, I'll bless those who bless you, I'll curse those who curse you, and I will use you to bless all the people on earth. And that is the good news of Jesus. और यीशु मसीह के ताल्लुक से जो नवीद मुसर्रत थी, वो हमें पैदाइश 12वें बार की तीसरी आयत में नजर आती है। खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया और उसने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत देगा वो बरकत पाएगा, तुझ पर लानत करेगा उसके ऊपर लानत होगी, और मैं तेरे वसीला से जमीन को बरकत दूंगा। That's a great subject to study, that Jesus is called the son of Abraham, and he's come to और bless everybody who will believe him. और इस मौजू का Amen. मुताला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को अब्राहम का बेटा भी कहा जाता है। What a wonderful Savior. कैसा प्यारा खूबसूरत हमारा निजात दहिंदा है। There's a bit more. Yeah. Amen. Amen. So Exodus, that came after Genesis. We see और God as the पैदाइश Savior. की किताब के बाद अगली किताब है, वो है खरूज, खुदा और निजात दहिंदा। The main person in Exodus is Moses. और खरूज की किताब में जो अहम शख्सियत हमें नजर आती है वो है मूसा। And we see how God saved his people out of Egypt. और हम देखते हैं कैसे खुदा ने मिस्र में लोगों की हिफाजत की और उन्हें बचाया। Egypt is like a picture of this world. जो मिस्र है वो इस दुनिया की छवि और तस्वीर है। And Jesus saves us from the corruption that is in this world. और यीशु मसीह उस नापाकी और आलूदगी से हमें बचाता और छुड़ाता है जो दुनिया में है। You see, the people in this world are slaves of Satan, but we can be free through Jesus Christ. आज दुनिया के लोग गुनाह की गुलामी में हैं, लेकिन हम मसीह के वसीला से छुटकारा और रिहाई पाते हैं। In Exodus, we read about the Passover where the lamb died for the family, and that's the Lord Jesus dying for us. That's the picture. और खरूज ही में हम बर्रा के बारे पढ़ते हैं, जो लोगों के लिए मारा गया, जो लोगों के लिए कुर्बान हुआ, और ये मसीह की तस्वीर है कि मसीह खुदा का बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ। We read about the law, the 10 commandments. और फिर शरीयत और 10 हुक्म के बारे हम पढ़ते हैं। And that shows us what Jesus is like. He's all pure, he's true, he loves his Father, he loves everybody. और ये तस्वीर है मसीह की कि यीशु जो सरापा पाक है, खुदा से प्यार करता, वो अपने बाप से प्यार करता और सारी दुनिया से वो मोहब्बत करता है। We read about the high priest who offers for the people the sacrifices. और सरदार काहिनों के बारे हम खरूज की किताब में पढ़ते हैं, जो लोगों के लिए कुर्बानी गुजरान था। And he is a picture of the Lord Jesus, who is our great high priest. और ये यीशु मसीह की तस्वीर है जो हमारा बड़ा सरदार काहिन है। But he offered himself to save us. लेकिन उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम छुड़ाए जाएं। The Bible is all about Jesus. सारी बाइबल मुकद्दस
सिर्फ और सिर्फ मसीह से मुतालिक है। I believe you can find him in every book of the Bible. और मेरा यकीन है कि बाइबल मुकद्दस की हर किताब में आप मसीह को पा सकते हैं, Which is wonderful. और वो अजीब और मुशीर है। Here are some of the ways where you can see him in the books of the 5 books of Moses. और मूसा की 5 किताबों में आप इस तरह से मसीह को देख सकते हैं। You'll have to study these for yourself, but I'll just read them to you. आपको खुद इसका मुताला करना है, लेकिन मैं सरसरी जायजे के तौर पर आपके लिए ये पढ़े देता हूं। You can look back over these notes and look at the references and check them for yourself. आप इन नोट्स पर गौर कर सकते हैं और खुद उन हवाला जात को पढ़ सकते हैं। Messiah would be born, the child of a woman. मसीह औरत से पैदा होगा। He's a son of Abraham. वो इब्राहिम का बेटा, He's a king in the family of Judah. और यहूदा के घराने का बादशाह होगा। He's like the person of Melchizedek in Genesis. और मलके सिदक जो पैदाइश की किताब में है, He's उसकी like तस्वीर, Isaac, who was going to be sacrificed in Genesis 22. और पैदाइश की किताब के 22वें बाब में इसहाक जो कुर्बान होने के लिए पेश हुआ। He's like Joseph, who was rejected by his brother, but then exalted to be ruler of Egypt. और फिर यूसुफ की मानिद, जिसके भाइयों ने उसको रद्द किया, लेकिन बिलाखर He's वो like सबके ऊपर हाकम हुआ। He's like Moses, the great deliverer. वो मूसा की मानिद जिसको खुदा ने छुड़ाने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया। He's like the lamb that was slain for our sins. और वो उस फसा के बर्रा की मानिद जो हमारे लिए कुर्बान होने के लिए मुकर्रर हुआ। He's like the bread from heaven to feed us. वो आसमान से रोटी जो He's like, हमें खुदावंद खिलाता है। he's like the rock that was struck to give water, and he was struck on the cross to give us living water. वो चट्टान जिससे पानी निकला He's ताकि picked लोगों की प्यास बुझाई जाए। यीशु हमारे लिए चट्टान, उसका He's- बदन तोड़ा गया ताकि उसके वसीला से हम जिंदगी का पानी पा सकें। He's pictured in the tabernacle and in the Jewish festivals. और उसकी तस्वीर यहूदियों के जो सारे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें पाई जाती है। He's shown by the bronze serpent they put on a pole when everybody was dying in the wilderness. They just looked to the bronze serpent and they were healed. और वो उस सांप की मानिद जब सब लोग मर रहे थे तो सांप लटकाया गया और जो कोई उसकी तरफ देखता बच जाता। What a wonderful savior. कैसा प्यारा हमारा निजात दहिंदा है। We can come to God freely today. और आज हम खुदा के पास आजादी से आ सकते हैं। Here's a very small picture of the tabernacle. बहुत छोटी तस्वीर है जो And that- खैमा इज्तमा की है, And this is the high priest. और उसके मुत्सल में तस्वीर हमें सरदार काहिन की नजर आती है। And he is a picture of the Lord Jesus. और सरदार काहिन यीशु मसीह की शबी है। When you went into the tabernacle, there was an altar where they sacrificed the animals. और खैमा इज्तमा में जब दाखिल होते तो एक जगह ऐसी थी जहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती।
Now, in the Christian life, we have to first come to the place of sacrifice, the cross. और मसीही जिंदगी में हमें जो पहली कुर्बानगाह के पास आना है वो है सलीब, where God can take away our sins. जहां पर खुदावंद हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। Then there is the big wash basin the priests used to wash in. और फिर उसके बाद धोने के लिए ये बर्तन, बेसन, जिससे काहिन अपने आप को पाक और साफ करता। And a new priest was washed, anointed, and he put on new clothes. और ये तहारत का बर्तन काहिन अपने आप को पानी से धोता और अपनी तहारत करता दाखिल That's होने a, के लिए खैमा इज्तिमा में। that's a picture of our new life in Christ. We're a new people. और ये है हमारी मसीह में जिंदगी, हमारी नई जिंदगी कि किस तरह से खुदावंद हमारी तहारत करता, हमें अपने कलाम के पानी से धोता, अपने लहू से धोता और पाक करता है। Then there was a table with bread on it and some wine, and that reminds us of fellowship with Jesus. और फिर खैमा इज्तिमा में ये मेज जिसके ऊपर रोटी होती और वाइन होती, और ये तस्वीर है कि हम मसीह के साथ रिफाकत और शिराकत कर सकते हैं। There's a lampstand with oil in it, and that reminds us as we start to follow Jesus, he starts giving us understanding. और फिर ये शमादान, चिरागदान, और इसका मतलब यह है जब मसीह के साथ हम चलते हैं तो वो हमें अपनी और ज्यादा बिनाई और गहराई देता है। Then there's the altar of incense, and that's a picture of prayer going on all the time. Christ is living to pray for us. और फिर ये बखूर जिसका मानी है कि मसीह हमारे लिए मुआ और हम मुसलसल उसके साथ रिफाकत कर सकते हैं। And we can join him in praying for others. और हम दूसरों के लिए शफात करने में मसीह के साथ हम शराकतदारी कर सकते हैं। And inside the holiest place of all, there was the mercy seat. और खैमा इज्तिमा के अंदर जो सबसे अहम जगह वो Yes. पाक तरीन मकाम, There was a chest where they had the 10 commandments, the pot of manna, and Aaron's rod, which came back to life and budded. और वहां पर एक संदूक पाक तरीन मकाम में जिसमें रोटी और मूसा का असा वहां पर हो। So what I want to encourage you to do is study these things for yourself. और जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि आप शख्सी तौर पर इन सारी बातों का बगौर मुताला There's करें। so many precious jewels that you can discover. और जब आप मुताला करेंगे तो आपको बहुत कीमती चीजें इस मुताला में मिलेंगी। If you look on YouTube or Facebook, you will be able to see the teachings we did last year with the students. And I think it took us a whole year, but we looked at every book in the Bible. And you can go back and look at them and get a bigger picture of each book of the Bible. अगर YouTube पर हमारे चैनल पर जाएं तो आपको पिछले साल जो हमने तालीम दी थी वो आपको मिलेगी, और वो तालीम बहुत बाबरकत तालीम है, और हमने सिखाया था सारी बाइबल मुकद्दस की किताबों के ताल्लुक से। God wants to bring you to that place of fellowship where he is your father. खुदावंद आपको उस मकाम पर लाना चाहता है जहां This पर way, आपको समझ आए कि वो आपका बाप है। the mercy seat in the New Testament, they call it the throne of grace. और ये रहम का मकाम
और नए ऐदनामा में उसको खुदा के फजल का मकाम कहा जाता है। God wants to bless you so abundantly. खुदावंद आपको इस कदर बरकत देना चाहता है। Just one last thing now. What I'd like you to do for your homework. और जो मैं आपको काम करने के लिए देना चाहता हूं, आखिरी बात वो ये है, Practice that drawing and telling the जो whole Bible story. You can tell it to somebody. जो ड्राइंग मैंने की थी, मैं चाहूंगा कि आप उसको सीखें और उसकी मश्क करें And और I'll किसी न try किसी and do को the same. वो कहानी जरूर सुनाएं। And then next time, maybe you can tell us how you got on sharing it with people. और अगली दफा आप हमें बताएंगे कि जब आपने दूसरों के साथ ये एक मुख्तसर कहानी शेयर की तो क्या हुआ। And then look at the notes or the last talks, the longest survey of the Bible, which we've said you can find on YouTube or Facebook if you look. Yeah. और फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो हमने तवील तालीम दी थी, उसको आप देख सकते हैं और वहां से और गहराई से आप सीख सकते हैं। And so what you have to do is go back and study that picture and think, how can you explain it very simply to someone? And that will help them understand the Bible and meet with the Lord Jesus. और आपको क्या करने की जरूरत है, ये जो तस्वीर मैंने आज बताई है, सिखाई है, आपके लिए जरूरी है कि आप इसकी मश्क करें और किसी ना किसी को जरूर इसके ताल्लुक से बताएं और देखें कि खुदा उनकी जिंदगी में क्या करता है। So let me just pray now. अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। We want to thank you, dear Lord God. आए प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र Thank you करते for हैं, your precious Bible. तेरे पाक बेशकीमत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Thank you for sending the Lord Jesus. तेरा शुक्र हो कि तूने अपने कलमे कलाम हमारे Thank मसीह you को for भेजा। giving us your Holy Spirit. तेरा शुक्र हो कि तूने अपना पाक रूह हमें दिया। I pray for every student that they'll begin to understand your great plan. और मेरी दुआ है हर एक स्टूडेंट के लिए, उसको अपने इलाही मंसूबे And से bless वाकिफ them. कर दे। Bless them as they try to share this good news with others this week. और इनकी मदद कर जब वो किसी दूसरे के साथ तेरे कलाम की सच्चाई को शेयर करते हैं। We thank you in Jesus' name. मसीह में हम तेरा शुक्र करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, brother, for interpreting. Thank you. Praise the Lord. The joy is such a privilege. Oh, You did well. Thank you. oh, what a joy. What a joy. What a wonderful flow. And thank you very much, Keith. I like your drawing, by the way. Oh, thank you. Thank you. My drawing is really terrible. My wife helps me sometimes. Yeah. Yeah. My wife and my daughter are very good in drawing, in Yeah. painting, in drawing. And when we play a game, I'm the worst because I was not paying attention in my drawing class. You know, when we were studying drawing in the school, I was not paying attention. But I'm very impressed by your drawing. It's beautiful. Yeah, Thank you. thank you. It was very beautiful way you communicated this biblical truth. Well, if people share it, they will see people saved, I'm sure. Amen. 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 Yes, Pastor Khalid. Yes, thank you. और अगर आप ये जो ड्राइंग है, अगर आप इसको सीखें और दूसरों को बताएं
तो ये बहुत मुफीद और बाबरकत आपके लिए हो सकती है। Amen. And we learned quite a lot. Good evening, sir. Hello, good evening. सर सर ये Evening. हमारे सिग्नल्स प्रॉब्लम थे तो इसलिए हम थोड़े लेट आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज आप बता देंगे कि ये पिक्चर हमें मतलब दोबारा से कोई सेंड हो सकती है, क्योंकि पास्टर नबील साहब यहाँ से चले गए हैं सर्कल, तो हमने मोबाइल किसी का अरेंज किया था, तो क्लास अभी हुई है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई है हमें सर। अगर क्योंकि हमारी आधे घंटे की क्लास मिस हुई है, तो आप काइंडली बता देंगे सारे बच्चे मतलब आए हुए हैं, तो अगर आप वो तस्वीर जो उन्होंने बना के करवाई है, प्लीज सर अगर आप हमें बता दें। It's on the recording, my dear sister. जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। So you can go back and look at the recording, and from the beginning to the end, you will find this teaching and the picture. पिक्चर भी और सब कुछ जो है वो उस आज की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। Sorry that you have a signal problem and some other, but we thank God we have it's on recording. सो माजरत के सिग्नल की वजह से आप ताखीर से शामिल हुई हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग की वजह से आप सब कुछ दोबारा देख सीख पास पाएंगे। Lovely. So God bless you, and we take a little break, and then we start our course on methods of Bible study. और थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद मेथड ऑफ द बाइबल स्टडी, कलाम मुकद्दस के मुताला के कायदे हम सीखेंगे। So we log out, then we log in. हम पहले लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट के बाद हम दोबारा लॉग इन करेंगे। Thank you, Excuse Keith. me, God Dr. bless. God Dr. bless one you. second. Dr. one Yes. second, 1 second. ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी हम कहेंगे कि वो दोबारा वो भी लॉग इन होंगे ना, क्योंकि अभी मुझे पता है कुछ ने पूछना है कि शायद उन्होंने आना है कि नहीं, उन्हें भी काइंडली ये बता दो। This is for Means the second year. second year. ये First second year year के is लिए। not allowed. No. Okay, okay. Thank you. Thank you. God bless. Bye-bye. Yes, bye.